हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार। हेलो। नमस्कार नमस्ते सर। सर। नमस्ते। बाकी क्लासेस क्यों नहीं किया आप लोगों ने? बाकी लोगों को इनवाइट करिए। जी सर। सर ये कल का सर हमारा ये ऑनलाइन होगा क्या सर? कल का बेटा वो ये पोस्टपोन्ड हो रहा है 21 तारीख को। यस सर। चलिए मैं कल का आप लोगों का ले लेता हूँ, ठीक है? ये सर ऑनलाइन होगा ना, ये ऑफलाइन आना होगा? ऑनलाइन ही होगा। ओके। सर इसमें एग्जाम में क्या पूछा जाएगा सर? किसमें? सर कल कल के बारे में पूछ रहा है ना, क्या होगा सर उसमें? उसमें 10 मिनट का जो है आपका वो होगा, प्रेजेंटेशन होगा। जी। आगे बाकी लोग भी। अभी सैली और ये नहीं आया है रमन। फोन करो। ओके सर। हेलो। सर फोन नहीं उठा रहा है। कौन नहीं उठा रहा है? देखो, today our topic is smart sensor used in electric vehicle। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो है स्मार्ट सेंसर हम कैसे यूज करते हैं और कौन कौन से स्मार्ट सेंसर हम यूज करते हैं उसके बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल, यू मस्ट अवेयर अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है ना? एंड
currently all the automobile company is working on electric vehicle, and they are using lot of smart sensor, and that's why today our topic is smart sensor used in electric. ठीक है? And we will see how the smart sensor are working in a electric vehicle. And as we know, currently if we are using diesel engine or petrol engine, they are also uses lot of smart sensors. Without smart sensor, we can't control the whole process of any system, yeah, any automobiles. Now we are concentrated on electric vehicle, and electric vehicle are uses lot of smart sensor for controlling many operations, such as suppose the measurement of the speed, and controlling of the charging control. Lot of sensor are used. ठीक है? Such as I will discuss some important sensor used in electric vehicle. The electric vehicle are rising rapidly on a road, and government has driving policy directive to the decreases CO2 emissions. सबसे पहले जो हमारा जो main objective है, if we are using normal automobile, then the emission of CO2 and CO are more dangerous for our environment and human being. That's why our government is removing all this type of the automobile for pollution, for the region of the pollutions, and they are converted into electric vehicle. Electric vehicle are vehicle having storage such as battery, and the DC मतलब battery storage electricity in a form of DC supply, and it again converted into AC, and that derive the induction motor, and induction motor speed is controlling through the variable frequency drive, and for this operation, many smart sensors are used to control many functions and many operations. And first, the important thing is used to Internet of the Things, IoT. You must know about the IoT. IoT. What is mean by IoT? Internet of Things. Suppose if we have a smart sensor, and what are the working of the smart sensor? Smart sensor are converted physical phenomena into electrical into digital, and digital system is interface with microcontroller and CPU, and they performing many operations such as signal processing, amplification, and communication. And communication, if once all these data are transmitted through the internet, then anywhere we can access anything and control anything. So that's why electric vehicle are widely used. IoT along with smart sensor having strong benefit, since they have the ability to mine new insight from the disparate data and assets from electric vehicle charging station location. Actually, if we are talking about charging station uses lot of smart sensors. Utility network device, utility power flow to end customer engagement system, IoT along with the smart sensing node will help city streamline service, save money, and create new experiences for the citizen.
all by the adding and connecting their existing data and services. More precisely, how the electric vehicle charging stations, that means कि if we are talking about the चार्जिंग, अगर हम साधारण भाषा में जो है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो है कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। सबसे पहले जो है स्टोरेज के लिए हम बैटरी यूज करते हैं। बैटरी में जो है बिग साइज की बैटरी हम यूज नहीं करते हैं, काफी स्मॉल साइज की बैटरी यूज करते हैं। और बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्ज कंट्रोलर हम यूज करते हैं। और यहाँ पे जो है एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू जो है बैटरी को चार्ज करते हैं, और चार्ज करने के बाद बैटरी जो है इन्वर्टर से कनेक्ट होता है। इन्वर्टर जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर इसके बाद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव फ्रीक्वेंसी को 0 से 50 हर्ट्ज तक चेंज करता है, और 50 हर्ट्ज से चेंज करता है। और यहाँ पे जो है इंडक्शन मोटर यूज होते हैं। सारे व्हील के लिए अलग अलग इंडक्शन मोटर यूज होते हैं, और इसके थ्रू जो हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। स्पीड के साथ साथ जो है बहुत सारे ऑपरेशन हमको परफॉर्म करने होते हैं, जहाँ पे अलग अलग स्मार्ट सेंसर जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, अब जो है स्मार्ट सेंसर कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले हम आईओटी यूज करते हैं। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब आईओटी जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कहीं भी जो है हम किसी भी डेटा इंफॉर्मेशन को जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। तो अब यहाँ पे जो है बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्ज कंट्रोलर हम यूज करते हैं एज ए स्मार्ट सेंसर। फिर इसके बाद जो है एक्सटर्नल जो सोर्स होता है उसके अंदर बहुत सारे सेंसर होते हैं। अब इसमें जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू द यूटिलिटी एंड ग्रिड सिस्टम और यूटिलिटी सिस्टम का रियल टाइम इंफॉर्मेशन अगर हमको जो है फाइंड आउट करना है तो उस केस में जो है हम आईओटी के साथ जो है स्मार्ट सेंसर यूज करके जो है फाइंड आउट करते हैं। एंड इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस city services address EV charging will be the actualized next 5 year from the now। अब इसमें क्या होता है कि हाँ, बहुत सारे शहरों को जो है अगर इंटीग्रेट करना है तो उस केस में जो है हम स्मार्ट सेंसर यूज करते हैं। स्मार्ट सिटी implementation comprises EV charging infrastructure in a first instance focus on a goal setting while planning physical EV charging ICT information and communication technology infrastructure is having a large number of sensor logical connected infrastructure having also large number of the sensor that capable of providing platform for a system integration in a support of the objective listed in a report implementation. These systems should have lifespan around 15-20 years so that return on investment can be a benefit point address approaches। अब देखो यहाँ कहाँ कहाँ पे जो है हम स्मार्ट सेंसर यूज करेंगे। फिजिकल डिप्लॉयमेंट ऑफ द राइट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर के अंदर जो है हम स्मार्ट सेंसर यूज करेंगे। कनेक्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क टू द स्ट्रीमलाइन द स्टेटस एंड यूटिलाइजेशन अपडेट टू द सेंट्रल सिस्टम। अब इसमें क्या करेंगे, हम कम्युनिकेशन नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो स्मार्ट सेंसर यूज किया जाएगा। यूटिलाइजेशन अपडेट टू सेंट्रल सिस्टम। यूटिलाइजेशन को सेंट्रल सिस्टम अपडेट करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज किया जाता है। connected and centralized system and subsystem to address and manage the now future need of the electric vehicle infrastructure। अब इसके लिए जो है सेंट्रलाइज सिस्टम या सब सिस्टम को जो कनेक्ट करते हैं
ताकि जो है फ्यूचर नीड को जो है फुलफिल किया जाए। नेटवर्क डिजाइन एंड कम्युनिकेशन सर्विस लेआउट सो दैट द इनेबल द फास्ट रैपिड डेटा कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस द सिटी। Development of the adequate virtual intelligence infrastructure so that the communicate the transport the flow information from the physical system to the central system, electric drive crew, etc. Uses lot of smart sensor. Integration of the renewable platform will be enable self-contained and locally generated energy so the EV charging infrastructure can make EV charging infrastructure having large number of the smart sensor means clean and less dependent traditional electricity utilization grid. Hello, यस सर, यस सर। समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ सर। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? हेलो, हेलो, हाँ सर। क्या पढ़ा रहे हैं? विवेक, हाँ जी सर। क्या समझ में आ रहा है? आर्किटेक्चर। किस चीज का आर्किटेक्चर? सुल्तान, यस सर। ईवी। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? सर ये ईवी स्मार्ट सेंसर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं जो व्हीकल में यूज होता है। हाँ रमन, रमन सुन रहे हो? रमन सुन पा रहे हो? हेलो, देखिए मैं जो है सिंपली बता रहा हूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है तो उसमें जो है स्मार्ट सेंसर कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। अब स्मार्ट सेंसर मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में स्मार्ट सेंसर का सारा चीज मैंने बताया था। समझ में आ रहा है? यस सर। ये स्मार्ट सेंसर क्या होता है, किसको आप स्मार्ट सेंसर बोलेंगे, किसको सेंसर बोलेंगे। उसमें मैंने बताया था कि स्मार्ट सेंसर जो है उसको बोलेंगे आप जो सेंसर के साथ साथ जो इंटरफेसिंग इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेसिंग सर्किट जहाँ पे प्रेजेंट होता है या कंबाइन करते हैं सेंसर के साथ जो है इंटरफेसिंग सर्किट, ठीक है, उस पूरे सिस्टम को स्मार्ट सेंसर बोलते हैं जो कि बहुत सारे ऑपरेशन जो है एट ए टाइम वो परफॉर्म करेगा। समझ में आ रहा है? स्मार्ट सेंसर का मतलब ये होता है कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को जो है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट भी करेगा, स्टोर भी करेगा और उसको ट्रांसमिट भी करेगा लॉन्ग डिस्टेंस पे, ठीक है, और सिग्नल रिसीव भी करेगा और उसको जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज भी करेगा, मैनिपुलेट भी करेगा, एम्पलीफाई भी करेगा। तो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द स्मार्ट सेंसर, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर स्मार्ट सेंसर कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं। तो ठीक है, तो वही बता रहा था मैं। अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग सेक्टर है जहां पे जो है स्मार्ट सेंसर वाइडली यूज किए जाते हैं, उस सेक्शन को मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। ओके सर। एक मिनट। तो अब हमने कहाँ कहाँ बताया, अब देखिए इसमें स्मार्ट सेंसर कैसे यूज हो रहे हैं। आईओटी का मैंने बताया, आईओटी के बारे में आप लोगों को भी पता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, जस्ट जो है किसी भी सेंसर को जो है इंटरनेट के साथ जो है हम कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ से जो है ऐसे एरिया में किसी व्यक्ति को बैठा दिया गया है, ठीक है, जहाँ पे क्या बोलते हैं कि ना तो कोई किसी तरह कम्युनिकेशन लाइन है, ठीक है, सैटेलाइट वाले सिग्नल वहां पे अगर आ रहे हैं तो वहां पे क्या होगा कि उसको जो है हम उस सेंसर को आईओटी से कनेक्ट कर देते हैं। आईओटी से मतलब उसमें रेस्पबेरी पाई पता नहीं बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जिसके बारे में बहुत डिटेल में मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि सेंसर को जब हम आईओटी से कनेक्ट कर देते हैं तो वो सीधे सीधे जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। इंटरनेट से कनेक्ट होने का मतलब कि दुनिया के हम किसी भी कोने से जो है उस चीज को हम एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे जब भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेंसर के बारे में बात करेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज हमेशा क्लियर होना चाहिए
कि हम बात कर रहे हैं IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, और IoT को जो है हम इस सेंसर के साथ जो है कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट सेंसर का डिफिनीशन ही मैंने बताया था कि सेंसर को जब इंटरफेसिंग सर्किट के साथ जो अगर जोड़ देते हैं तो उसको स्मार्ट सेंसर बोलते हैं, जो कि बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैंने बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। क्या होगा बेसिक स्ट्रक्चर? सबसे पहले जो है, जो हमारे पास जो अवेलेबल होगी सप्लाई, वो डीसी फॉर्म में होगी। डीसी फॉर्म में कैसे होगी? एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाएगा, और डीसी के थ्रू जो है हम बैटरी को चार्ज करते हैं। बैटरी जो है बड़ा साइज का नहीं होता है, लेकिन स्मॉल साइज का सेल टाइप का है। तो एक बार हमने जो है उसको फुली चार्ज कर दिया, तो उसमें जो है बैटरी को चार्ज करने के लिए भी जो है चार्ज कंट्रोलर यूज करना पड़ता है हमको। जैसे ही बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी वो डिस्कनेक्ट कर देगा, ठीक है ना। या बैटरी जो है किस तरह से चार्ज हो रही है उसका डिस्प्ले होगा कि कितने % चार्ज हुई है, कितना मतलब किस रेशियो में चार्ज हो रही है, कितना टाइम मतलब कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्प्ले होती है। तो ये सारी चीजें कैसे डिस्प्ले होंगी? क्योंकि यहाँ पे जो है स्मार्ट सेंसर यूज किए गए हैं। ठीक है ना। स्मार्ट सेंसर का मतलब है कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को एट ए टाइम जो है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना, और उस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करके जो है डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, फिर इसके बाद में मल्टीप्लेक्सिंग करना। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब कि बहुत सिग्नल को जो है एक सिग्नल में कन्वर्ट करना, फिर इसके बाद में डीमल्टीप्लेक्सिंग करना, मतलब कि एक सिग्नल को बहुत सारे सिग्नल में कन्वर्ट करना, और वहां से जो है डिस्प्ले के थ्रू जो है बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, और ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो है स्मार्ट सेंसर यूज किए जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कितना टाइम हुआ? सर 8:32। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, अब कल के लिए देखते हैं। ठीक है, हेलो। ठीक सर, ठीक। कल जो है बंक मत मारिएगा आप लोग, ठीक है। ओके सर।